Uh, so this was the question that I gave you all. Just see this question and tell me the answer. Some of you have given the answer Sir, also. option number C. Sir, option number Option C, number 14. C. 14. Option number C. Yes, the question is the answer is correct. Option number C. As you can see, also basically what So we it are is divide by 2 plus. no the consecutive numbers are being multiplied by 2. See, 50 multiplied by 2 is 100. 26 multiplied by 2 is 52. 14 multiplied by 2 is 28. 8 multiplied by 2 will be 8 multiplied by 2 will be 16. That's it. Khatam. Divided by 2 multiplied. ठीक है, that also you can say. But this is one of the logic. So the correct answer of this question will be option number C, that is 14. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Next question. Tell me the answer. We were discussing, see, there are different methods of discussing the there are different methods of solving. One method that you guys selected is that you guys told is 24 minus 6 is 18. 60 minus 24 is 60 minus 24 is 36. 120 minus 60 is again 60. The differences are in your series. The differences are in your series, that is 18. Then I'm having 36. Then further I'm having the difference is 24. So basically here the difference of the difference, here the difference is 18, here the difference is again it is 24. So there is a difference of 6 between the difference. The next difference is 90. The next difference is 90. So the next will be 120. Like this, using this logic, you can solve this question. Another logic that we have is the first term is 6, which can be written as 1 into 2 into 3. The second term is 24, that can be written as 2 into 3 into 4. The third term is 60. In fact, what you can say, no, in fact, you can't say like this. The third term is 60, that can be written as 3 into 4 into 5. The fourth term is 120, which can be written as 4 into 5 into 6. 210 can be written as 5 into 6 into 7. Next will be 6 into 7 into 8. The next term will be 7 into 8 into 9. And the last will be 8 into 9 into 10. That can be one of the method. Another method can be 6 is nothing but 2 cube minus 2. 6 is 2 cube minus 2. Then I am having 24, which is 3 cube minus 3. Then I'm having this 60, which is 4 cube minus 4. Then I'm having 120, which is 5 cube minus 5, and so on. So finally my number will be 8 cube minus 8, which is equal to 504. Like this also you can solve the question. No problem, no issue. You can solve the question by any way you want. You can solve the question in any way you want. Okay, next question. Sir, option number B. Option number B. Let me wait for others. Yes, sir, option B. Yes, sir, 37. Yes, sir. Option number B. Option number B. Yes, sir. Option number B. Okay, आप बताइए Yes, how sir, you. B option. Okay, Darsh, you tell me how you got the answer. Sir, the first and the second, adding the first and the second term, we will get the Okay, third term. Adding fine. the. ठीक है भाई. 3 plus 1 is equal to 4. 4 plus 1 is equal to 5. 4 plus 5 equal to 9. 9 plus 5 equal to 14. 14 plus 9 equal to 23, and so on. So the next term will be 14 plus 23, which is equal to 37. Now there can be different variations also. अगर यहाँ पे मैं 5 की जगह मान लो मेरे पास एक ऐसी सीरीज होती जिसमें ऐसा लिखा होता 3, 1,
3,1,4 और यहाँ पे मेरे को लिखा होता 5, 8 और उसके बाद मुझे लिखा होता 13, उसके बाद मेरे को लिखा होता 22, 26, उसके बाद मेरे से पूछा जाता कि 39 एंड देन 47, उसके बाद मुझसे पूछा जाता कि व्हाट विल बी द क्वेश्चन मार्क, सो दैट आल्सो यू कैन डू। सारे नंबर्स ऐड करने हैं। सारे नंबर्स नहीं ऐड कर रहे, हम फर्स्ट 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। देखो 3 + 1 + 4 is 8, then I am adding these two, 4 + 8 + 1 which is 13, then I am adding these 3, that is equal to 13 plus, एक मिनट कुछ गड़बड़ किया, 25 होना चाहिए यहाँ पे, so 25. हाँ, that was a mistake. So these type of variations can be there, so you have to be ready for these type of variations. See, this topic has no limitations. This topic has no limitation, but you should be ready for the variations that can be there. There can be different type of variations, but जितना आप practice करोगे उतना ही आपको फायदा होगा. Next. Excuse me, sir. हाँ बोलिए, Sir, I did this question in a different way, sir. बताइए बताइए. Sir, मैंने इसमें 4 - 3 किया सर तो 1 आया, फिर 9 - 4 किया तो 5 आया, वैसे ही 23 - 9 किया तो 14 आया, वैसे ही ठीक है. सर 37 minus 14 करेंगे तो 23 आएगा. Basically you are also doing the same thing. What they have done is they have added the two numbers and they got the third number. What you are saying is the middle number will be equal to the difference of other two numbers. Yes, definitely you can do, not a big deal, you can do. Next. ये तो हो जाना चाहिए यार अब तक. सर आंसर आ गया। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी. 2160. यस सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है Yes, भाई sir. आंसर. भाई यहाँ पे क्या किया, sir. सिंपल सी बात है यार. देखो कायदे से तो मुझे नहीं बताना चाहिए आप लोगों को ये सवाल, लेकिन चलो ठीक है, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो तो बता देता हूँ, है ना. छोटे छोटे तो नहीं हो लेकिन चलो बता देता हूँ. देखो भाई 3 × 2 इज इक्वल टू 6. ठीक है सर. 6 × 3 इज इक्वल टू 18. देन आई एम हैविंग 18 × 4 इज इक्वल टू 72. Then I am having 72 multiplied by 5 is equal to 360. उसके बाद मुझे क्या मिला सर, 360 multiplied by 6 is equal to 2160. खत्म. आगे बढ़िए. नेक्स्ट. सर 84. 84. So quick. यस सर Yes, sir, 84। 84. Yes, sir, 84. सोच लो यार, गलत मत बताओ यार. तो बहुत सिंपल है सर। अच्छा सिंपल है, क्या है सिंपल? सर 7 + 1 78 + 1 79 79 + 2 81 81 + 3 84. सर फिर आगे नहीं हो रहा वो। फिर आगे अच्छा 81 प्लस आगे 3 के नहीं हो बाद रहा सर। फिर 84 प्लस क्या करेंगे जी? 84 के आगे क्या करेंगे बेटा? हाँ सर वो नहीं देखा। हाँ वो नहीं देखा. तो 84 + 7 कर दो, फिर 92 + 8 कर दो, 92 + 9 कर दो, लेकिन फिर 103 प्लस क्या करेंगे? तो आपका तो लॉजिक फेल हो गया. आगे बताओ, दूसरा बताओ भाई. और लोग भी 84 बोल रहे थे. अदर्स वेर ऑल्सो सेइंग 84. बताओ भाई क्या हुआ 84 वालों? देखो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम. अगर यहाँ पे अगला कोई टर्म नहीं होता, अरे गड़बड़ हो गई. चलो देख लो भाई आंसर. द करेक्ट, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1. सो दिस विल बी द थिंग. व्हाट इज द थिंग? यहाँ पे see the difference is the difference of the difference is 1 - 2 is 1. then यहाँ पे 2 होना चाहिए था,
देन यहाँ पे 3 होना चाहिए था, फिर यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, यहाँ पे जो डिफरेंस है 5 है। सेम काम जो अभी आप लोगों ने प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इस वाले क्वेश्चन में एक में किया था ना, जिसके 2 लॉजिक पॉसिबल थे, वही काम आपको यहाँ पे करना है। एंड देन यू कैन कैलकुलेट द आंसर। जल्दी से कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। आई हैव गिवन यू द So 85. I have given you the 85. hint also. So the correct answer of this question will not be 84, but it will be 85. सर आप समझा सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया सर। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 10 मिनट। हाँ, मैं यहाँ क्या करूँ, लेट मी राइट द नंबर्स अगेन। द नंबर्स आर 78, 79, 81. 81 के बाद आई एम हैविंग, हियर आई एम हैविंग क्वेश्चन मार्क, देन आई एम हैविंग 92, अरे यार इसको फिर क्या हो गया, 103, एंड लास्ट में आई एम हैविंग 1119। ठीक है सर, अब देखो दिस इज 81। हाँ, अब देखो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सर वो 2 है। अगला जो नंबर होगा क्वेश्चन मार्क और उसके बीच का डिफरेंस कुछ होगा, मुझे नहीं पता, फिलहाल रहने दो। 92 और 103 के बीच का डिफरेंस कितना है सर? इट इज 92 और 103 के बीच का डिफरेंस है 11, और 103 और 119 के बीच का डिफरेंस है 16। अब जरा डिफरेंस का डिफरेंस लिया जाए। हियर द डिफरेंस वाज 1, इन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है 79, यहां पे जो डिफरेंस होगा, आई मीन द क्वेश्चन मार्क एंड दिस थिंग। सी मैंने क्या किया, एक सेकंड, लेट मी इरेज समथिंग। What I did is, first of all, I calculated the difference between the numbers, that is 79 minus 78 is 1. It's 81 minus 79 is 2. Here the difference is nothing. I have put here question mark. Then here also I don't know anything, so I have put here question mark. Then here the difference is 11. Here the difference is 16. Now what I did, I tried to calculate the difference of the differences. 11 और 16 के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरे को 5 मिला। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे नहीं पता, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी मुझे नहीं पता, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे को भी नहीं पता, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे 1 मिल रहा है। तो फर्स्ट टर्म मुझे 1 मिल रहा है, सेकेंड टर्म मुझे 5 मिल रहा है, तो मोस्ट लाइकली जो डिफरेंसेस होंगे, नाउ हियर आई एम नॉट श्योर, मोस्ट लाइकली जो डिफरेंसेस होंगे वो 2, 3, 4 एंड 5 ही होंगे। बट if after putting the differences as 2, 3, 4 and 5, if everything is being satisfied, then I can say that okay fine, my जो मैंने assume किया था 1, 2, 3, 4, 5, that difference will be okay. लेकिन अगर satisfy नहीं होता है, then I will have to look for some other logic. कुछ और hint दिया होगा, उस hint को फिर हमें देखना पड़ेगा दोबारा से। अब जरा यहाँ पे देखो, if I'm taking the differences as 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तो मिल गया मेरे पास 79, अगला नंबर मिल गया मुझे 81, जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 81 plus 2 plus 2, which is equal to 85. Now my next number should be 85 plus 3 plus 4, that is 85 plus 7, which is equal to 92. तो मेरा अगला नंबर 92 आ रहा है, फाइन। Now my next number will be 85 plus 7 plus 4, which is equal to 92 plus 11, that is coming out to be 103. My next number will be 92 plus 11 plus 5, that is coming out to be 119. So मैंने जो assume किया था, whatever I had assumed that the differences of the consecutive terms will be 1, 2, 3, 4, 5, that is correct. So the number will be, so here the number that will come is 85. Now why I did like this is, see I am clueless. मेरा जो term है वो middle का है, तो I am clueless about the thing कि what will be my term.
माई टर्म इज इन मिडिल, माई क्वेश्चन मार्क इज इन मिडिल, तो मैं यहाँ पे मेरे पास ज्यादा रास्ते नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ. वॉट एवर लिटिल बिट लॉजिक दैट आई हैव, आई विल यूटिलाइज दैट लॉजिक. एंड यहाँ पे मुझे फर्स्ट डिफरेंस ऑफ बिटवीन द टर्म्स मैंने निकाला. तो पहले दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस का डिफरेंस, पहले थ्री टर्म्स के बीच के डिफरेंस का डिफरेंस मुझे 1 मिला. लास्ट के थ्री टर्म्स के बीच के डिफरेंस का डिफरेंस मुझे 5 मिला. तो एक मेरे को सीरीज बनती हुई दिखी, बीच में देयर आर 3 ब्लैंक, तो मुझे एक सीरीज बनती हुई दिखी कि हाँ 1 2 3 4 हो सकता है. I tried, I back calculated, I got my result, so I marked my answer. ठीक है. यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि आपका ये 85 मैच नहीं करता, तो फिर उस केस में हमें कुछ और सोचना पड़ता है. वो क्या होता, फिर कंडीशंस वहां पे डिफरेंट होती, नंबर्स वहां पे डिफरेंट होते, तो फिर अपन कुछ और सोचते. ठीक है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज द क्वेश्चन. Sir, option number C. Option number C. Okay. Sir, option number C, 110. Okay, you tell me how you got option number C. Actually, the difference between say 0 and 6 is 6, and Mhm. 6 and 20 is 14, and Mhm. 20 and 42 is 22, and 42 and 72 is 13. The difference है. between 16 and 14 is 8, and 14 and 22 is also 8, and 22, and the difference between 22 and 30 is also 8. ठीक So है. the missing number would be 72 plus 30 plus 8, which is Okay, 110. fine. I don't have any issue. Sunay, you must have used some other logic. Let me wait for others. Anybody else who want to? Well, see, I have given you the answer also. The answer, the correct, see, the way by which your friend has solved, that is equally correct. I don't have any option. I don't have any problem with this. But you, if you want, you can also solve the question like this. See, 0 can be written as 1 square minus 1. 6 can be written as 3 square minus 3. 20 can be written as 5 square minus 5. 42 can be written as 7 square minus 7. And this 72 can be written as 9 square minus 9. So the last number 11, last number will be 11 square minus 11, which is equal to 110. See, in most of the cases, when you have 0, अगर आपका पहला टर्म 0 आता है, तो पहले ट्राई करना 1 क्यूब माइनस 1 का फॉर्मेट तो नहीं बन रहा है. इफ योर फर्स्ट टर्म इज 0, what you should try is, if it is 1 cube minus 1, it is 1 square minus 1. It can be also 1 cube minus 1 square. ये भी हो सकता है. तो ये तीन टाइप के तो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं. तो इन तीनों टाइप्स को ट्राई करना. वैसे द वे योर फ्रेंड करिश्मा हैज सॉल्व, दैट इज perfectly all right, and this is also another approach of solving the question. Sir, I have another method. हाँ बताइए. बताइए. Yes, sir. Sir, 0 can be written as 0 into 1. 6 can be written as 2 into 3. 20 can be 20 can be written as 5 into 4, 6 into 7, 8 into 9, then 10 into 11. Fine, no problem. 0 into 1 लिखा, फिर 2 into 3 लिखा, फिर 4 into 5 लिखा, 6 into 7 लिखा, 8 into 9 लिखा, 9 into 10 लिखा. Yes, no problem. Very सर good. और एक हो सकता है. क्या बोल रहे हो बेटा? सर 0 में 0 स्क्वायर प्लस 0, बाद में 6 में 2 स्क्वायर प्लस 2, इसमें 4 स्क्वायर प्लस 4, बाद में 6 स्क्वायर प्लस 6. ठीक है. 8 स्क्वायर प्लस 8. हाँ 10 सर, square 10 plus स्क्वायर प्लस 10. 10. Very good, very good. See, we have
we have how many, we have developed how many methods? So for a particular question we are having 4 methods. एक हमने किया 1 स्क्वायर माइनस 1 वाला मेथड किया. दूसरा जो आपकी फ्रेंड ने बोला कि सर द डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव, द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंसेस इज कमिंग आउट टू बी सेम. वेरी गुड. देन शी रीच्ड एट 72 plus 38 which is equal to 110. Very good. Next your friend told sir 0 को 0 क्यों पढ़ते हो आप 0 को 0 into 1 पढ़ो ना. मैंने बोला ठीक है भाई पढ़ लिया. सर 6 को 2 into 3 पढ़ो. Very good. In that way you got 10 into 11 which is equal to 110. उसको देख के आपके दूसरे फ्रेंड ने बोला, सर उसने क्या बोला, उसने वो बोला कि सर 0 को मैं 0 स्क्वायर प्लस 0 लिख सकता हूँ. सर 0 को मैं 0 स्क्वायर प्लस 0 लिख सकता हूँ. 6 को मैं 2 स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूँ. 20 को मैं 4 स्क्वायर प्लस 4 लिख सकता हूँ. 42 को 6 स्क्वायर प्लस 6, 72 को 8 स्क्वायर प्लस 8 और 110 को 10 स्क्वायर प्लस 10 लिख सकता हूँ. सो इन दैट वे आई कैन गेट द आंसर. वेरी गुड. यस यू कैन गेट द आंसर. नॉट ए बिग डील. दिस इज करेक्ट. दिस इज करेक्ट. वेरी नाइस. चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बताइए. गिव मी सम नाइस लॉजिक्स जो सुनने के बाद. Sir, may I say? बताइए, आप बताइए. चलिए. Sir, 1 can be written as 1 cube One. plus 1. अच्छा हाँ. 9. Sorry, 2. Sir, 2 हाँ can be ठीक है written as समझ 1. गया. सही है तुम्हारा मेथड सही है. समझ गया मैं. What you want to tell me, I got you. Yes, sir. So in that case the answer will be 126. यही बोल रहे हो ना जील? Yes, sir. Anybody else? करिश्मा, सुने, कुछ और बताना चाहेंगे आप लोग? No, sir, the same. क्या सुनने? कुछ और बताओ बेटा. करिश्मा? ओके. सर अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ. सॉल्व करो. By she is solving, so let us give her some time. Let her solve. 7 आया, 19 आया. यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 35 और 37. तो here the सर एक difference. डिफरेंस का मेथड भी है कि सर 7 19 37 है तो उनका भी डिफरेंस ले तो 12 18 तो मतलब 6 के मल्टीपल चल रहा है तो 12 18 24 तो अगला ऐसे भी 24 होगा. सी मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, आई डोंट नो मैं कितना करेक्ट हूँ कितना रॉन्ग हूँ, आई डोंट नो, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दिस मेथड ऑफ डिफरेंस कैन बी अप्लाइड इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. This method of difference can be applied in most of the question. See, we applied the same method in the previous question also. We applied the same method in the previous question also. We applied the same method. We applied the same method in this one also. Here also what we are doing is, we are applying the same method here also. One method is there कि sir ये 2 can be written as 1 cube plus 1, 9 can be written as 2 cube plus 1. ठीक है, fine. But is there any other method also? Let us try to explore, and I'm sure Karishma would be doing the same thing only. ये हो गया 2 9 28, then I'm having 65. इन दोनों का डिफरेंस होता है सर 7, इन दोनों का डिफरेंस होता है सर 19 और इन दोनों का डिफरेंस होता है सर कितना 37. अभी तक तो कुछ नहीं मिला. इन दोनों का डिफरेंस हुआ सर कितना हुआ 12, इन दोनों का डिफरेंस हुआ सर कितना हो गया 18. तो अगला जो टर्म होगा सर उसका डिफरेंस होना चाहिए 64. अगला जो टर्म होगा सर उसका जो डिफरेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था 24. तो जो मेरा अगला टर्म होगा, मतलब यहाँ पे अगर x है तो x माइनस 65 शुड बी इक्वल टू 37 प्लस 24. दोनों को सॉल्व, तीनों को ऐड कर लो. वॉट एवर यू विल गेट दैट विल बी योर आंसर. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग द आंसर विल बी कितना आएगा भाई आंसर? 126. The answer is coming out to be 126. How can I be wrong?
So it will be 65 plus 61, which is equal to 126. So this is my observation. आप लोग अभी और सवाल करोगे, मुझे पता, आई एम श्योर आप लोग और सवाल करोगे. तो जो भी सवाल आपका फंसे, उस सवाल को एक बार आप लोग डिफरेंस वाले मेथड से जरूर करके देखना. एक बार डिफरेंस वाले मेथड से जरूर करके देखना, and tell me whether this logic is valid everywhere or not. Now this question can't be solved by that method. If I'm looking the question correctly, मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को हम उस मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते. सर सर शायद 6 होना चाहिए. बेटा शायद पे गाड़ी नहीं चलती है, कॉन्फिडेंट होके बोलो. लॉजिक थोड़ा मतलब ऐसे कि 2 सीरीज यहाँ पे चल रहे, जैसे कि 11 है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 11 11 और 11 आ रहा है, तो उन सब में 11 11 ही है. उसके बाद 1 है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 11 और 16 है. तो फिर मैंने सोचा था कि 11 मतलब यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन में 6 था, तो जैसे कि 11 और 16, वैसे 1 और 6. तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका लॉजिक गलत होगा? क्योंकि मतलब ऐसे, क्योंकि थोड़ा अजीब टाइप का मुझे लगता क्यों? है. क्या हमने 3 लॉजिक वाले क्वेश्चंस, 3 सीरीज वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं? हाँ मतलब सीरीज तो ठीक है, लेकिन 1 6 11 16 सही है. क्या? बाकी में दूसरा अच्छा चलो बताओ मुझे, 1 6 11 16, भाई इसमें किसी को कोई समस्या दिख रही है क्या? नहीं सर. डिफरेंस तो 5 का है, तो समस्या क्या है? हाँ सर. कोई समस्या नहीं है बेटा. द आंसर विल बी 6 ओनली. Why I gave you this lecture? Because I hate this word शायद. अगर कोई मुझे बोलता है कि शायद ऐसा होगा, मेरा मन करता है कि मैं उसे उठा के फेंक दूं. Why? The reason is I'm using a rough language, but the reason is you have to be confident. आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है बेटा. अगर 100 में से अगर मैं एक नॉर्मल एग्जाम की बात करूं, चलो लेट मी टेल यू सम स्टैटिस्टिक्स बिफोर आई प्रोसीड. सर सर मिल गया 581. आंसर. यस सर, D 580. सर 581. 111 का डिफरेंस है. 111 का वन डिफरेंस. ठीक है भाई, ठीक है भाई. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब आप लोगों ने सभी लोगों ने बोल दिया कि सर 111 का डिफरेंस है, तो मैं क्या बोलूं भाई. जनता जनार्दन, लो भाई मान लिया तुम्हारा आंसर. The series will go like this, that there is a difference of 1 1 1, so you guys win. The answer will be 5 whatever it. क्या बोले बेटा? मैंने दूसरे मेथड से किया है. बताइए. सर मतलब ये कोई प्रूव मेथड नहीं है, बट सर मैंने काइंड ऑफ टाइम स्ट्रेन की वजह से ये मेथड यूज किया. सर इसमें पहला नंबर जो है उसमें 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है. तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलता है कि 5th नंबर का जो स्टार्टिंग नंबर है वो 5 होना चाहिए. चलो मान लिया. फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर का लास्ट नंबर जो है वो 7 है. फिर उसके बाद 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, तो 11 होगा. तो सर लास्ट में जो मतलब 5th नंबर जो आएगा उसका लास्ट नंबर 1 ही होना चाहिए, क्योंकि 11 का 1. तो सर इसमें पहला ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. बी और सी बचते हैं. बी और सी और डी तीनों बचते हैं. नहीं सर, डी भी नहीं सर डी तो पहले ही लेना. हाँ डी, चलो डी भी चला गया. हाँ ठीक है. बी और सी बचे. हाँ आगे बताइए. और हम लोग वापस 7 नहीं ले सकते, क्योंकि 470 में ऑलरेडी 7 यूज हो चुका है. तो सर बचा एक ही ऑप्शन, तो 581 ही आंसर होगा. चलो ठीक है, मान लिया.
चलो ठीक है, मान लिया कि 470 में आप 7 नहीं यूज कर सकते। हाँ ठीक है, क्योंकि फिर वो 571 हो जाएगा। हाँ ठीक है, वेल गुड। See, what she has told is she has just tried to use common sense. Common sense again, जैसा कि इन्होंने भी बोला, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, this is not a method. But mental ability में बेटा, the beauty of mental ability is there is no method. इस गेम का रूल यही है, इस सब्जेक्ट का रूल यही है कि देर इज नो रूल। आपको जैसे सॉल्व करना है सॉल्व करो ना, मुझे आंसर से मतलब है। माई द OMR शुड रीड योर आंसर एज करेक्ट, दैट्स इट। देर इज नो रूल इन दिस सब्जेक्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि सर देखिए, और ध्यान से सुनना जो इन्होंने बोला, सर पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, तो जो हमारा जो आंसर होगा उसकी जो फर्स्ट डिजिट होगी, दैट इज द 100th डिजिट ऑफ माय आंसर विल बी 5। ठीक है, चलो मान लिया। सर आगे बढ़ते हैं, अब मैं वंस डिजिट की बात करता हूं। 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, क्योंकि 0 दिख रहा है मुझे, जो मेरा 4th नंबर है उसमें मुझे 0 दिख रहा है, तो जो लास्ट वाला नंबर होगा सर उसमें 1, उसका जो वंस डिजिट होगा मेरे आंसर का, दैट हैज टू बी 1। नाउ आई एम हैविंग 2 आंसर्स, एक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ आई कांट टेक ऑप्शन नंबर सी बिकॉज सर ऑलरेडी 7 इज देयर। 570 के बाद 571 मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जो मेरा 10th डिजिट है that is not repeating anywhere. Therefore what I will take, I am being left with only one option, that is option number B, which is equal to 581. By this method, if nothing is striking you, by this method you can eliminate the option. See what she has done, she has eliminated this option, she eliminated this option. Now in the end she was left with either this option or this option. और जब जो लॉजिक इन्होंने दिया कि मैं 7 को दोबारा नहीं ले सकता, yes I can accept this logic and the answer, hence the answer will be 581. यहाँ पे ये फंस सकती थी, अगर अगर एक ऑप्शन मेरा 591 होता तो शायद ये बच्ची फंस जाती, वहां पे ये फंस सकती थी, क्योंकि फिर इसके पास 2 ही ऑप्शन, फिर इसके पास 3 ऑप्शन होते, 571, 581 और 591। 571 को तो शी हैज ऑलरेडी रिजेक्टेड, बचता मेरा 581 और 591। तो अगेन आई डोंट नो व्हाट शी वुड हैव डन। हाँ बोलिए। मैं कह रही थी नहीं, अगर होता भी तो जैसे कि 3 और +1 4 और +1 5, फिर 5 + 2 7, फिर 7 + 2 9 कर देते। नहीं, एक काम और कर सकते थे यहाँ पे बेटा, एक काम और कर सकते थे। 5 के बाद देखो एक चीज और है, 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 आना तो यहाँ पे 6 चाहिए, 7 8 9 9 के बाद 10 आया, तो एक जो 1 आया, बेसिकली इससे ये 7 हो गया। बेसिकली हियर आल्सो वी आर डूइंग द सेम थिंग। अगर आप लोग ध्यान से देखो, हाँ सर, हम लोगों ने यहाँ पे भी वही काम किया है। आप लोगों ने सीधे सीधे 111 ऐड कर दिया, हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला सर 100 का तो डिफरेंस है ही, +10 का डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है, हम लोगों ने ये किया। जो आपकी दोस्त ने जो आंसर मार्क किया, the way she was appearing to, she was trying to approach the question was, पहले 100 ऐड किया सर, तभी तो 137 से 248 हुआ। पहले 100 ऐड किया सर, फिर 359 ऐड किया सर, इस तरीके से she started adding and that is why she got the answer as 111। ठीक है, that is why she got the answer as 581। करिश्मा वेरी गुड, कृष्णा वेरी गुड, वेरी गुड। Sir, I use another method. अच्छा, यू यूज्ड अनदर मेथड, बताइए, आप भी बताइए। बताइए। Yes, sir. Sum of the 3 digits is 7 + 3 + 1 gives us 11. Sir, then next is +4 + 2 gives us 14, Then 14. it is, sir, then it is 17. So now it is again 11. So again 14. So the option number B. ठीक है, वेरी गुड। भाई इन्होंने क्या किया ये भी सुन लो। इन्होंने बोला कि सर जो सम ऑफ द डिजिट्स है ना, दैट इज रिपीटिंग। 7 + 3 is 10, 10 + 1 is 11।
यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट्स आया वो 11 आया, यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट्स आया वो 14 आया, यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट्स आया वो 17 आया, यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट्स आया वो 11 आया, अगला जो आएगा वो 14 आएगा, उसके बाद अगला जो आएगा वो 17 आएगा। बट सुना है क्या और किसी में 14 नहीं है सम ऑफ डिजिट्स? नहीं है, और किसी में 14 नहीं है सम ऑफ डिजिट्स। वेरी गुड, गुड, नॉट ए बिग डील, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़िए। दिस क्वेश्चन सर 63। सर ये 63 63 कैसे है भाई? चलो ये भी बता दो 63 कैसे है? प्रोडक्ट ऑफ consecutive odd numbers. प्रोडक्ट ऑफ consecutive odd numbers. करिश्मा यू आर सेइंग समथिंग एल्स? 15 minus 3 12 मतलब वही डिफरेंस वाले 15 minus 3 12। See, हाँ। again she has done the question with difference. Very good, very good. You can do the question like that also. I don't have any problem. Again she has done the question with difference thing only. But what you can do is you can write it as 1 into 3, 1 into 3. Then see the solution that is given is 12, 20, and like this the difference is increasing. So that is a method. Fine, you can write this as 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7. Then you can write it as 9 into 11. Then you can write it as 11 into 13. So you will get your answer. यहाँ पे क्या मिलेगा भाई? जो भी है 63, 7 into 9 that is equal to 63. So 63 will be your correct answer. हाँ, इस मेथड को क्विकली अप्रोच करने के लिए टेबल याद होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा आप लोग को टेबल याद है कि नहीं याद है। जिनको नहीं याद है याद कर लेना यार, बहुत फायदा होगा। चलो 114। क्या है यार, तुम लोग क्या करती हो यार? ऐसे कोई सवाल करता है क्या? तुम लोग तो यार सवालों की धज्जियां उड़ा रहे हो। क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, आंसर Yes, sir, 114. चलो 114। सो यहाँ पे भाई आंसर आ रहा है 114। एक तो मेथड मुझे दिख गया डिफरेंस वाला, और कोई मेथड है तो जल्दी से बता दो यार। Sir, into 2 minus 2. into 2 minus 2। 9 multiplied by 2 Yes minus sir, 2. into 2 minus 2. पहला मेथड, द फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन विल बी into 2 minus 2 कर दो। दूसरा मेथड एज योर फ्रेंड ऑलवेज सेज, सर डिफरेंस देखिए ना, पहले दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है 7, और बाद के दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है 20, 14, उसके बाद के दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है 28, उसके बाद के दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस होगा 56। सर अब ऐड कर दीजिए ना 58 प्लस 56, विल गेट योर आंसर 114। करिश्मा, डिड यू सॉल्व इट लाइक दिस? यस सर। गुड, चलिए नेक्स्ट। हम्म, ऑप्शन नंबर Yes sir, D option 147. 147। ओके, वेट करते हैं। 9 के बाद यहाँ पे डिफरेंस आएगा 15 के बाद यहाँ डिफरेंस आ रहा है 21 के बाद यहाँ डिफरेंस आ रहा है 27। अगेन दैट मेथड इज वर्किंग हियर आल्सो। Yes, sir. Difference plus difference method, that Yes, sir, it difference always method works. is working here also. See, it works in Sir, तो 90% इसमें और एक of method the हो सकता cases. It अच्छा, works. एक और मेथड I have one Yes, more sir. method. I have one more method. Let me tell. Then आप उसके बाद आप लोग बोलना. I have one more method. Another method is I can write this 12 as 3 into 2 square. I can write this 27 as 3 into 3 square. I can सेम 48 को हाँ मैंने सर, यही लिख मेथड दिया था कि सारे स्क्वायर्स के 3 साथ into 4 मल्टीप्लिकेशन। स्क्वायर, फिर फाइनली लास्ट में होगा 3 into 7 स्क्वायर which is equal to 147. So there are two methods. There can be one more method. हो सकता है कहीं और कोई मेथड छुपा हुआ हो जो हो सकता है मुझे अगली क्लास में पता चले। सर 147 डिड बाय स्क्वायरिंग मेथड। ओके,
हो सकता है कोई और मेथड हो सकता है कोई और ढूंढ रहा हो किसी मेथड को, मुझे अगली क्लास में बताना. दिस इज द लास्ट क्लास फॉर दिस नंबर सीरीज. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ अल्फाबेट सीरीज. ओके, अल्फाबेट सीरीज इतना लंबा नहीं चलेगा. वी हैव टेकन 3 क्लासेस फॉर दिस टॉपिक बिकॉज आई वांटेड टू डिस्कस एज मच क्वेश्चंस एज आई कैन. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. Sir, got the answer. D. What is the answer? Sir, 60. Sir, 63. No, Six- sir, it's not. in अच्छा the- मेरा sir, भी 63 आ रहा है. तो चलो। मेरा भी 63 आपका भी मेरा भी 60. आपका भी 63 आ रहा है. सभी लोगों का 63 आ रहा है. अच्छा, ऐसा लेकिन वो कैसे? ऑप्शन में नहीं है पता. ऑप्शन में नहीं है 63. अब क्या करें भाई, अब क्या करें? चलो देख लेते हैं. अगर ऐसा है, लेट अस सी व्हाट इज द आंसर. Each term is equal to the previous term multiplied by 2 and 2, 4, 6 are added to the products respectively. Each term is equal to previous term multiplied. See, the answer that you guys are getting 63, that might be the correct answer. I don't have any problem. But the thing is, that should be in your option. Why this topic is difficult, my dear friends? This is the reason why this topic is difficult. Because हो सकता है जो लॉजिक आपने लगाया हो सकता है वो लॉजिक एग्जामिनर ने नहीं लगाया है. 68 बाय डिफरेंस मेथड. भाई आपके फ्रेंड ने बोला 68 आएगा सर डिफरेंस मेथड से. लेट अस क्विकली चेक इन दोनों के. लेट अस क्विकली चेक. सर डिफरेंस से ही तो डिफरेंस से 63 आएगा. हाँ, sir, डिफरेंस 63. भाई देख लो, उन्होंने बोला है तो कुछ कैलकुलेट करके ही बोला होगा. जरा एक बार Sir, चेक कर लो 3, यार. 8. हाँ, यहाँ पे 20. डिफरेंस कितना आ रहा है? 18, 38, 18, 33. 33 आना चाहिए. 33 हाँ सर, क्यों मतलब आना चाहिए? 33 आएगा क्योंकि 5, 10. सर अभी डिफरेंस का डिफरेंस निकालो सर. 5, 10 आ तो रहा है. 5, 10, 5 के मल्टीपल्स हो गए. 5, 10 फिर 20 Plus आना चाहिए 15. ना. 5, 10 नहीं फिर सर, प्लस 15 आएगा. 15 आएगा. क्यों 15 क्यों आएगा? प्लस 5 5 हो रहा है ना सर. 5 के Plus मल्टीपल. 5 हो रहा है. प्लस 5 होगा या 60 आंसर. एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो. अगर 20 आएगा डिफरेंस, अगर 20 आएगा डिफरेंस तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा? 30 प्लस. एक मिनट जरा मुझे बताओ आप लोग क्या बोल रहे हो? व्हाट शुड बी हाँ द सर, तो आंसर 68 आ रहा है. हाँ सर, तो 68 आएगा. सी. जब ऐसा लिखा हो 5, 10, 15, 5, 10 एंड यहाँ पे क्या आ रहा था? 5 और 10 है. अगर मेरे को नेक्स्ट नंबर लिखना है तो आई एम इन ए डिलेमा. मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5 इंटू 2, 10 इंटू 2 लिखूं या 10 प्लस 5 लिखूं? जरा बताओ मेरे को. सर दोनों के करके चेक कर सकते हैं. सर जो दोनों भी एक-एक ऑप्शन करके में check हो कर सकते वो वाला. हैं. सर जो भी सही आप आ रहा है. लोगों ने क्या किया? 18 प्लस 5 किया, 33 आया. 30 प्लस 33 किया, 63 आया. आप लोगों ने बोला सर 63 तो ऑप्शन में ही नहीं है. तो फिर आप लोगों को 10 इंटू 2 चेक करना चाहिए था ना. समझ में आ रही है मेरी बात? भाई यहाँ पे डिफरेंस 5 है, यहाँ पे डिफरेंस 10 है. अगला डिफरेंस में 20 लूं या 15 लूं, यहाँ पे आके मेरी गाड़ी फंस गई है. जब मैं 15 लेता हूं अगला डिफरेंस तो मेरा आंसर 63 आता है. डेट इज नॉट मैचिंग. सो व्हाट शुड आई डू? आई शुड टेक द डिफरेंस एज 20, देन आई शुड प्रोसीड. जब मैंने 20 लेके डिफरेंस लिया तो आई एम गेटिंग माई आंसर. सो 68 विल बी द करेक्ट आंसर. बात समझ में आ गई? से यस और नो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So what I will do is I will stop here today, and in the next turn we will start the next topic. आप लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो. अपन फिर से इस टॉपिक पे आएंगे 2-3 चैप्टर्स करने के बाद.
ठीक है, हम फिर से इस टॉपिक पे आएंगे, फिर से इससे क्वेश्चंस करेंगे। इवन आई एम एंजॉयिंग ए लॉट, सो हम फिर से इस पे आएंगे 2-3 टॉपिक करने के बाद। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।